Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Voice Section Online Class Second Year. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Said, your English teacher. Today is lecture number 10, that is a part of Grammar and Composition series. We'll discuss two things today: use of prepositions and correction in the use of nouns. Both these questions are included in the objective type paper of your annual examination. And as both these are parts of speech, these are very important as far as MDCAT is concerned. So today's lecture is rather more important because of your annual examination as well as MDCAT. Let's start. Dear students, we'll start with correct use of prepositions, exercise number 1. Let's start. Number 1, we should be affectionate dash children. There are 4 options. We have to choose one that is suitable here. Alpha towards, beta on, Charlie with, delta at. What may be the suitable preposition with affectionate? That is towards. Alpha option is correct here, and we'll tick alpha towards. The sentence becomes, we should be affectionate towards children. Number 2, Rizwan was absorbed dash his studies. Options are absorbed on, absorbed in, absorbed with, absorbed of. What is the correct preposition? Beta option, in. Absorbed in. Rizwan was absorbed in his studies. Number 3, your plan is agreeable dash your father's wishes. Options are with, agreeable of, agreeable to, and agreeable on. What is the suitable preposition here? That is Charlie option 2, agreeable to. Sentence becomes, your plan is not agreeable to your father's wishes. Number 4, Nader is addicted dash heroin. 4 options are alpha of, beta of, Charlie from, delta to. Addicted to, delta option is correct. Nader is addicted to heroin. Number 5, Professor Riaz is always accurate dash his judgment. 4 options are alpha accurate in, beta accurate with, Charlie accurate of, delta accurate over. What may be the correct preposition here? The option is alpha, in. Professor Riaz is always accurate in his judgment. Number 6, the manager's proposals are not acceptable dash the laborers. Options are acceptable for, acceptable to, acceptable in, acceptable of. What is the correct option? That is beta, acceptable to. The sentence is, the manager's proposals are not acceptable to the laborers. Number 7, the drawing room is adorned dash beautiful paintings. The options are adorned with, adorned in, adorned of, adorned at. The correct preposition is with, and the option is alpha. The drawing room is adorned with beautiful paintings. Adorned with, decorate karna, sajana. Number 8, Sidra is accomplished dash painting. Options are at, with, in, of. The correct option is Charlie, in, accomplished in. Sidra is accomplished in painting. बहुत अच्छी है, माहिर है. Number 9, I am not acquainted dash these persons. Options are alpha of, beta with, Charlie at, delta of. What is the correct preposition here? That is beta option, with. I am not acquainted with these persons. Acquaint with का मतलब होता है जानना, रूशनास होना. Number 10, his remarks were adverse dash yours. The options are adverse to, adverse with, adverse of, adverse from. What may be the correct preposition here? Alpha option 2,
एडवर्स टू, हर रिमार्क्स आर एडवर्स टू योर्स, के मुखालिफ हैं, ऑपोजिट हैं. नाउ dear students, errors in the use of nouns, very important part of today's lecture. Put your concentration very deeply so that you may understand the rules actually, and these rules will definitely help you in your annual examination as well as MDCAT. Number 1, the poor lead a miserable life. पुअर्स नहीं होता. पुअर जो है ये प्लूरल नाउन को ही शो करता है, तो ये पुअर्स नहीं होगा. द पुअर लीड अ मिजरेबल लाइफ. नंबर 2, द वेजेस ऑफ सिन आर हेल. जब वेजेस से मुराद रिवार्ड हो, सिला हो, तो फिर हम इसको सिंगुलर यूज़ करेंगे. अगर इससे मुराद सैलरी हो, रुपया पैसा, मजदूरी वगैरह, तो सैलरी के तौर पे हो तो प्लूरल. द वेजेस ऑफ सिन इज़ हेल. यहाँ वेजेस सिला है, इसलिए यहाँ सिंगुलर नाउन यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. नंबर 3, द न्यूज़ आर नॉट ट्रू. न्यूज़ का प्लूरल नहीं होता. न्यूज़ बजाते खुद एक सिंगुलर नाउन के तौर पे ट्रीट होती है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आता है. द न्यूज़ इज़ नॉट ट्रू. अगर न्यूज़ का प्लूरल बनाना है तो उसे हम पार्टिटिव कहते हैं. द आर्टिकल्स ऑफ न्यूज़ लिख सकते हैं. द आइटम्स ऑफ न्यूज़ भी लिखा जा सकता है. नंबर 4, शी गेव मी 5 10 रुपीज़ नोट. यहाँ 10 रुपीज़ नोट्स के बारे में बता रहे हैं. नोट्स नाउन है, तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे, उसकी वैल्यू को बताए, वो एडजेक्टिव होता है. और याद रखें एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता, तो 10 रुपीज़ प्लूरल के तौर पे यूज़ इसलिए नहीं कर सकते चूँकि यहाँ ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है. शी गेव मी 5 10 रुपी नोट्स. 5 नोट्स, नोट्स तो प्लूरल हो सकता है चूँकि ये तो नाउन है और 10 रुपी यहाँ एडजेक्टिव है, इसलिए ये प्लूरल नहीं हो सकता. नंबर 5, हर हेयर्स आर वाइट. जब हेयर जनरल उनके बारे में डिस्कशन हो तो इंग्लिश में हेयर और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करते हैं. हर हेयर इज़ वाइट. अगर आप बालों को काउंट कर सकें फिर इसका प्लूरल भी आप लिख सकते हैं. जैसे देयर आर 2 ग्रे हेयर्स इन हर हेड. अब यू कैन काउंट, इफ़ यू कैन काउंट यू कैन यूज़ हेयर्स एज वेल. नंबर 6, आबद वॉन्ट्स टू कंटिन्यू हिज स्टडी. यहाँ स्टडी नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है, वर्ब के तौर पे यूज़ नहीं हुआ, जिससे मुराद तालीम है. तो जब भी स्टडी से मुराद तालीम हो तो ये हमेशा प्लूरल यूज़ होता है, स्टडीज़. Abad wants to continue his studies. Number 7, politics are his chief interest. यहाँ पॉलिटिक्स से मुराद एक शोबा है, एक फील्ड है, तो उसको सिंगुलर के तौर पे ट्रीट करेंगे. पॉलिटिक्स इज़ हिज चीफ इंटरेस्ट. उसका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, एक फील्ड में. यस, अगर पॉलिटिक्स से मुराद पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, पॉलिटिकल फीलिंग्स हैं, तो हम इसको प्लूरल यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैं ये कह सकता हूँ हिज पॉलिटिक्स आर वेरी एग्रेसिव. कि ही इज़ वेरी एग्रेसिव इन हिज पॉलिटिकल व्यूज़, इन हिज पॉलिटिकल आइडियाज़. तब इसको प्लूरल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं. नंबर 8, मैथमेटिक्स आर टॉट इन द फर्स्ट ईयर. यहाँ ये बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं वो कुछ नाउन जो एंड होते हैं एस पे. बच्चे बाज़ का समझते हैं ये प्लूरल है. तो जैसे मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया जब एज सब्जेक्ट की बात हो, इकनॉमिक्स हो गया, फिज़िक्स हो गया, ये सारे के सारे नाउन एक सब्जेक्ट को शो जब करें तो फिर ये सिंगुलर ही ट्रीट होंगे और फिर इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा. मैथमेटिक्स इज़ टॉट इन द फर्स्ट ईयर. हिज मैथमेटिक्स इज़ वीक. अब यहाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ हम प्लूरल यूज़ करेंगे. हिज मैथमेटिक्स आर वीक. नंबर 10, मैनी कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड. कैटल को कैटल्स के तौर पे यूज़ नहीं किया जा सकता, ये रॉन्ग होगा ये हमेशा. लेकिन ये है प्लूरल नाउन, इसके साथ एस नहीं लगाएंगे. ये कैटल जानवरों के लिए है. मैनी कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड.
नंबर 11, मैनी शीप्स वर ड्राउंड इन द फ्लड। शीप का भी प्लूरल नहीं होता, शीप भी प्लूरल नाउन है। मैनी शीप वर ड्राउंड इन द फ्लड। जिस तरह कैटल बज़ाहर सिंगुलर नज़र आता है, शीप भी बज़ाहर सिंगुलर नज़र आता है ये वर्ड। इन दोनों के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल यूज़ करेंगे। नंबर 12, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वंडरफुल। सीनरी का प्लूरल नहीं होता, सीनरीज यूज़ नहीं किया जा सकता, हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वंडरफुल। इस सेंटेंस को दो तरह से करेक्ट किया जा सकता है। नंबर 1 जो यहाँ लिखा हुआ है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वंडरफुल, आर द सीन्स ऑफ कश्मीर आर वंडरफुल। सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वंडरफुल। नंबर 13, ही स्कोर्ड 95 रन्स इन द सेकेंड इनिंग। इनिंग कोई वर्ड नहीं है जो ये क्रिकेट की होती है, ये इनिंग्स हमेशा होती है। ही स्कोर्ड 95 रन्स इन द सेकेंड इनिंग्स। आप कह सकते हैं सेकेंड इनिंग्स हैज़ स्टार्टेड। इनिंग्स ये वो नाउन है जो एस पे एंड होते हैं, जिस तरह बिलियर्ड्स बी एस पे एंड होता है, लेकिन इसको हमेशा हम सिंगुलर के तौर पे यूज़ करेंगे। एथलेटिक्स बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, एथलेटिक्स को भी सिंगुलर नाउन के तौर पे ट्रीट करेंगे। नंबर 14, वी डू नॉट ईट फ्रूट्स। ये फ्रूट्स जब जनरल यूज़ करें तो इसके साथ एस का इजाफा नहीं होता। वी डू नॉट ईट फ्रूट जब जनरल फ्रूट की बात हो। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। नंबर 15, ही हैज़ 10 हेड्स ऑफ कैटल। ये नंबर है तो इसके साथ हम हेड्स नहीं लगाएंगे। ही हैज़ 10 हेड ऑफ कैटल मतलब उसके पास 10 जानवर हैं। नंबर 16, आई सोल्ड 2 डजन्स एग्स। ये 2 डजन्स डिस्क्राइब कर रहे हैं एग्स को, तो ये कभी भी प्लूरल नहीं होगा चूँकि ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहे हैं यहाँ। तो आई सोल्ड 2 डजन एग्स, not 2 dozens eggs. I sold 2 dozen eggs. नंबर 17, हर वेट इज़ 5 stones। ये उसके वैल्यू है तो इसको हम प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे। हर वेट इज़ 5 stone, not 5 stones. नंबर 18, आई एम वीक इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स है वर्ड, मैथमेटिक तो होता ही नहीं है। आई एम वीक इन मैथमेटिक्स। नंबर 19, आई बॉट अ न्यू ट्राउज़र्स। ये ट्राउज़र वर्ड नहीं है, इसके साथ इसको चूँकि इसके 2 हिस्से होते हैं इसलिए इसको हमेशा प्लूरल के तौर पे यूज़ करते हैं। आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउज़र्स। आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउज़र्स। नंबर 20, ही बॉट सम स्टेशनरीज़। स्टेशनरीज़ जहाँ ई आ जाए इससे मुराद कापियाँ, पेंसिलें, बुक्स वगैरह होता है। ये प्लूरल नहीं होता, ये कलेक्टिव नाउन है। ही बॉट सम स्टेशनरी, तो ये प्लूरल के तौर पे यूज़ हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ ई की बजाय ए हो तो उसका मतलब होता है मोशनलेस, साकन। ई हो तो उससे मुराद ये जो कॉपीज़, पेंसिल्स, बुक्स एट्सट्रा। नंबर 21, आई टेक पेन ओवर माई वर्क। ये ईडियम है तो ईडियम को हम चेंज नहीं कर सकते। आई टेक पेन्स ओवर माई वर्क, इसको कभी भी पेन के साथ आई टेक पेन नहीं होगा। आई टेक पेन्स ओवर माई वर्क कि मैं अपने काम की बड़ी उसको दिल से करने की कोशिश करता हूँ, मैं उस पर बड़ा तरद्दुद करता हूँ, मेहनत करता हूँ, फ़िक्र करता हूँ। 22, आई बॉट 2 पेयर ऑफ शूज़। अब देखें ये 2 आ गया तो 2 के साथ ये नाउन भी प्लूरल हो जाएगा। आई बॉट 2 पेयर्स ऑफ शूज़। अगर 1 होता फिर पेयर आना था। आई बॉट 1 पेयर ऑफ शूज़। अब 2 है तो 2 के साथ नाउन ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाएगा। नंबर 23, ही गेव ऑर्डर टू रिलीज़ हिम। जैसे ये इडियम मैंने पढ़ा था आई टेक पेन्स, इसी तरह हमेशा गिव ऑर्डर्स होता है। ही गेव ऑर्डर्स टू रिलीज़ हिम। 25, ही इज़ मैन ऑफ वर्ड्स। ये ईडियम है मैन ऑफ वर्ड, ये वर्ड्स नहीं हो सकता। ही इज़ मैन ऑफ वर्ड, अपने वादे का पक्का है, अपनी बात पर कायम रहने वाला है। 26, द पोइट्रीज़ ऑफ इकबाल आर फुल ऑफ लाइफ। याद रखें पोइट्री का प्लूरल नहीं होता,
जिस तरह कैटल का प्लूरल नहीं होता, इसी तरह पोइट्री का प्लूरल भी नहीं होता, इसी तरह सीनरी का प्लूरल भी नहीं होता, इसी तरह मशीनरी का प्लूरल भी नहीं होता. द पोएम्स ऑफ इकबाल आर फुल ऑफ लाइफ. दिस सेंटेंस में कैन बी करेक्टेड इन टू वेज. वन इज हियर द पोएम्स ऑफ इकबाल आर फुल ऑफ लाइफ. द सेकेंड में बी द पोइट्री ऑफ इकबाल इज़ फुल ऑफ लाइफ. या तो पोएम्स के साथ आप आर लिखेंगे या फिर पोइट्री के साथ इज़ लिखेंगे. 27. योर सीजर्स इज़ डल. सीजर्स के साथ हमेशा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं. योर सीजर्स आर डल. योर सीजर्स आर डल. सिंगुलर बज़ाहर तो कैंची एक ही लगती, चूँकि उसके दो फल होते हैं, इस वजह से जिस तरह ट्राउज़र्स के दो होते हैं हिस्से, इसी तरह सीजर्स के भी होते हैं, इसीलिए इसको प्लूरल वर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं. प्लीज़ गिव मी अ सीज़र. आज सीज़र नहीं होता, एक तो सीज़र्स होता है, जिस तरह हमने अभी पढ़ा था पेयर ऑफ शूज़ या पेयर ऑफ ट्राउज़र्स ये पढ़ा था, इसी तरह पेयर ऑफ सीज़र्स होता है. प्लीज़ गिव मी अ पेयर ऑफ सीज़र्स. That's all of today's lecture, dear students. I hope you might have understood first the prepositions and then the correction in the use of nouns. I would advise you watch this video lecture once again for better understanding. If you feel any problem, if you have any question, you may comment in the comment section, and inshallah I'll be there to satisfy you. I'll be there to answer your questions. Till some next lecture, take a very good care of yourself. Thank you very much.